सुप्रभात कलीसिया। It's really great to see you all back. बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। I mean, it's last week we didn't meet in person over here, but we met, I think so, in families. गए हफ्ते हम व्यक्तिगत रूप में हॉल में नहीं मिले, लेकिन शायद कुछ परिवार मिले साथ में। I mean, it was really a great fellowship time. और संगति का बहुत ही अच्छा समय रहा। But it looks very long time we had a gap. लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। So it's really great to see you all here today. बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। And those who have joined online. और जो लोग Zoom पर जुड़े हैं उनको भी। First of all, I would like to thank Jesus. सबसे पहले मैं यीशु को धन्यवाद कहना चाहूंगा। That whatever I am today, it's only because of him. आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं यीशु के कारण हूँ। I would also like to thank Franco, who has given me this opportunity to preach over here today. और मैं फ्रैंको को भी शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज प्रचार कर सकूं। So my today's topic is the courage of faith. और मेरा आज का शीर्षक है विश्वास का साहस। The courage of faith is there are the many Bible characters. I mean, you might be knowing in your mouth very easily, like Abraham, Isaac, Jacob, Sarah. These were having a lot of good faith into the Lord. और बाइबल में ऐसे कई किरदार है, जैसे याकूब हुआ या अब्राहम हुआ, सारा हुई, कि उनका दृढ़ विश्वास था परमेश्वर में। But I'm not going to speak about them. लेकिन मैं आज उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। There is one character who has been least preached on him. एक किरदार है शास्त्र में, बहुत ही कम उनको लेकर प्रचार होता है। As I was going through with my daily readings, और जैसे मैं मेरा प्रतिदिन का बाइबल पढ़ना कर रहा था, so I was going through with the Mark chapter 10 verse 46 to 52. तो मैं मरकुस के 10वें अध्याय वचन 46 से 52 पढ़ रहा था। For me, it is very difficult to preach until God speaks through the Bible, which is related to my life. और मेरे लिए प्रचार करना कठिन है जब तक कि परमेश्वर मुझसे बात ना करे शास्त्र के द्वारा, जो सीधे सीधे मेरे जीवन से जुड़ी है। And I came across the scripture, and really God touched me and made me remind of my old testimony. और मैं इन वचनों को मैंने पढ़ा और सच में परमेश्वर ने मुझे मेरे पुराने जीवन के बारे में, मेरी गवाही के बारे में याद दिलाया। So I will speak eventually after the word of God. और मैं वचन बांटूंगा, उसके बाद में आपसे बांटना चाहूंगा। So let us quickly look into the word from Mark 10 verse 46 to 52. तो आइए हम जल्दी से वचन की ओर देखते हैं। मरकुस का 10वां अध्याय वचन 46 से 52। The word is a story. Basically, it's a passage of a story of blind Bartimaeus receives his sight. और दरअसल ये जो अध्याय है वो एक कहानी है जहाँ पे बर्तिमाई, जो एक अंधा व्यक्ति था, वो दृष्टि पाता है। So let us turn, if you have your Bibles, please open it to the Mark 10. तो अगर आपके पास बाइबल है आपका, तो मरकुस के 10वें अध्याय को खोलिए। So I'll just read in English and Dipina will just translate in Hindi. तो प्रशांत अंग्रेजी में पढ़ेंगे और मैं हिंदी में पढ़ूंगी। Verse 46 says, Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. 47 verse says, When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called to the blind man, Cheer up, on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र
बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Amen. So let us pray together. तो आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। Father God, I want to thank you for this wonderful day, Lord Jesus. पिता, धन्यवाद इस खूबसूरत दिन के लिए। Lord, as we come to you, Lord Jesus, to listen to your word, प्रभु, जैसे हम आपके पास आते हैं आपके वचन को Lord, प्राप्त let करने के our लिए, heart, mind, and vision to see you, Lord, and we receive you. प्रभु हमारा हृदय, हमारी मन, हमारी नजर आपको देख सके। And as we receive this word, Lord, we may have a fruitfulness in our life. In the name of Jesus, I pray. और जैसे इस वचन को हम स्वीकारते हैं प्रभु, हम जीवन में फल देखेंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। So, as per the passage, blind man's father was called Timus. और इस अध्याय को अगर हम देखें तो बर्तिमाई के पिता का नाम तिमाई था। Bartimaeus basically simply means the son of Timus. और बर्तिमाई का अर्थ ये हुआ कि वह तिमाई का पुत्र है। So if we compare with the Gospel of Matthew and Gospel of Luke, there is a blind man who got healed. In Matthew, it is a two blind men which they got healed. In Luke, it is one blind man which got healed. अगर But हम मत्ती और लूका दोनों सुसमाचारों की तुलना करें तो हम देखते हैं मत्ती के किताब में दो अंधे व्यक्तियों ने चंगाई पाई और लूका की किताब में एक अंधे व्यक्ति ने चंगाई पाई। But in the Gospel of Mark, it has clearly mentioned the name of that blind man as a Bartimaeus. लेकिन अगर हम मरकुस की किताब में देखते हैं तो उस अंधे व्यक्ति का नाम वहां पर दिया गया है और वो नाम है बर्तिमाई। The Bartimaeus is a son of Timus. तो बर्तिमाई जो है वो तिमाई का पुत्र है। And as per the commentaries, it has been known that basically his father might also be blind. और कमेंट्री लिखी है तो ऐसा लगता है पढ़ के कि शायद उसका पिता भी अंधा होगा। And looking to his condition, he was completely helpless. I mean, he was in that condition that he can't live on his own livelihood. और अगर उसकी दिशा देखी जाए तो पता चलता है उसकी जो दिशा है वो निराशा है उसमें, और वो खुद कमाता नहीं है और वह आत्मनिर्भर नहीं है। Bible doesn't say much of his past life, whether he was born blind or he lost his sight. और शास्त्र उसके पुराने जीवन के बारे में नहीं बताता है कि वो क्या अंधा जन्मा था या उसने आगे चलकर जीवन में दृष्टि खो दी हो। But nobody cared to know about him or trying to know about his name. लेकिन किसी में भी उसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की या उसके नाम के बारे में भी पता करने की कोशिश नहीं की। In fact, he was rejected by the society, and even the disciples of Jesus has rejected him. और ऐसा है कि समाज ने उसे ठुकराया था, इतना ही नहीं कि यीशु के शिष्यों ने भी उसे ठुकराया था। But looking to his story, Bartimaeus was desperate to get healed. लेकिन अगर हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बर्तिमाई बेताब था चंगाई पाने के लिए। So he might be able to work and live on his own.
ताकि वो काम कर सके और अपना जीवन स्वयं चला सके He might not be dependent on someone to help him. और वो किसी पर निर्भर ना रहे कि कोई उसकी मदद करे हमेशा। Hallelujah. So basically, if we see in our practical life, in today's life also, तो अगर हम हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं, आज के जीवन में भी you might have seen a lot of beggars who are blind, and people are, I mean, those beggars are very helpless. हम देखते हैं कई भिखारियों को, और कई बार वे भिखारी अंधे होते हैं और वो उनकी कोई मदद नहीं होती है। And nobody is there to help him, to give them a proper understanding where you have to sit or where you have to pass by. They are और- completely helpless. कोई उनकी मदद के लिए नहीं होता है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, और देखा जाए तो उन उन वो जैसे कि कोई मदद नहीं है किसी से भी, उस प्रकार के होते हैं। So let us look into the story of Bartimaeus. और वे असहाय होते हैं, और आइए हम आगे बढ़ के बर्तिमाई की कहानी को देखते हैं। A blind man, Bartimaeus, was at a roadside, was begging to get his livelihood. और बर्तिमाई जो है वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। When Bartimaeus heard that there was a crowd going by, and he inquired that Jesus of Nazareth was going by along with the crowd. और जब बर्तिमाई को पता चला कि एक भीड़ वहां से गुजर रही है, तो उसने पूछताछ की और उसे पता चला कि यीशु नाजरी वहां से गुजर रहा है। So he shouted aloud, Jesus of Nazareth, Jesus, son of David, have mercy on me. तो उसने जोर से पुकारा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। If we notice over here why he has shared as a son of David, अगर because आप ध्यान देंगे कि उसने क्यों कहा दाऊद की संतान, इसलिए Jews were used to believe that the Messiah will come from the King David, descendant of the King David. क्योंकि यहूदी ये विश्वास करते थे कि जो मसीहा आएगा वो दाऊद की वंशावली से होगा। So here he didn't miss a chance, to speak and shout loudly that Jesus, son of David, have mercy on me. तो यहाँ पर उसने मौका नहीं छोड़ा और वो जोर जोर से पुकारने लगा कि यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। But over there, the crowd were trying to keep him quiet. They were putting him down, and they were not letting him to speak more. लेकिन वहां पर जो भीड़ मौजूद थी उसे चुप कर रही थी और बोलने नहीं दे रही थी। At those time, Jewish people used to believe that illness and disability is due to the sin in that person's life. और उस समय में यहूदी ऐसे विश्वास करते थे कि कोई भी बीमारी या निर्बलता जो है वो उस व्यक्ति के जीवन के पाप के द्वारा आती है। And even in today's life also, if we can see those who are in different religions, they believe if someone person is really disabled, they think there is some sin in his life. और आज के समय में भी अलग अलग जाति के लोग जो है वो ये विश्वास करते हैं यदि कोई बीमारी या निर्बलता किसी के जीवन में है तो उसके पाप के कारण ही है। And so Bartimaeus was suffering from such situation, and where people used to ignore him. तो बर्तिमाई जो है वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा था कि लोग उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे And would not help a person like him. और वह जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को वो कभी भी मदद नहीं करते थे। But Bartimaeus took a courage of faith. लेकिन बर्तिमाई ने विश्वास का साहस लिया And he shouted louder and louder, और Jesus, son of David, have mercy on me. जोर जोर से वो पुकारने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। He was hoping that he can be healed. वो उसे यह आशा थी कि वह उसे चंगाई प्राप्त हो सकती है If Jesus wishes to heal him. यदि यीशु चाहे उसे चंगा करना तो। Jesus was surrounded with the crowd over there. और यीशु के इर्द गिर्द वहां पर भीड़ थी, But still he was able to listen to Bartimaeus' voice.
लेकिन तब भी वो बर्तिमाई की आवाज को सुन पा रहा था। At that moment, he asked his disciple to please call him. और उस क्षण में उसने अपने चेलों से कहा, कृपया उसे बुलाओ। And the moment when he was asked to come, और जिस क्षण उसे आने के लिए कहा गया, Bartimaeus was so excited. बर्तिमाई इतना उत्साहित हो गया, He was so desperate वह इतना बेताब हो गया that he has left his cloak कि उसने अपना जो ऊपरी वस्त्र था उसे छोड़ दिया। and he jumped and he just came to Jesus. बस वह उछला और वह यीशु के पास पहुंच गया। The cloak represents that whatever the heavy garment he was carrying, और जो वस्त्र है, जो भारी वस्त्र वह पहने हुए था, he thought that just to leave that garment aside उसने सोचा कि वह वस्त्र को वह रख छोड़े, so that it won't be a hindrance for him to meet to Jesus. ताकि वह यीशु से मिलने के लिए उसके लिए एक रुकावट ना बन जाए। He wanted to set free of all the burdens what he was carrying. और वह जो भी बोझ लेकर चल रहा था वह उसे छोड़ देना चाहता था। And he wanted to meet Jesus. और वो बस यीशु से मिलना चाहता है। So the moment when Jesus asked him, what do you want me to do for you? और जिस क्षण यीशु उससे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम चाहते हो, He simply said, I want to see. बस उसने यही कहा कि मैं देखना चाहता हूं। And that moment was a great moment for him. He received his sight. और वह क्षण उसके लिए एक अद्भुत क्षण था, उसने अपनी दृष्टि पाई थी। Here Jesus said, your faith has healed you. और यहाँ पर यीशु उससे कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे Amen. चंगा किया है। So it was just a favor for him on his faith. और उसके विश्वास के कारण उस पर वह कृपा हुई थी। Amen. So, here if we can see, he has not even received his physical sight, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी उसने शारीरिक दृष्टि ही नहीं पाई, but he has received his spiritual sight. लेकिन उसने शारीरिक दृष्टि तो पाई है, लेकिन उसने आत्मिक दृष्टि भी वहां पर पा ली Because the थी। last verse says he followed Jesus. क्योंकि आखिरी वचन में लिखा है कि वह यीशु के पीछे हो लिया। When I was preparing and meditating the scripture of God, जब मैं यह वचन पर मनन कर रहा था और इसकी तैयारी कर रहा था, God spoke to me through this story परमेश्वर ने इस कहानी के द्वारा मुझसे बात की and reminded me the very testimony which I might have shared or may not be shared in my into church. और मुझे मेरी उस गवाही के बारे में परमेश्वर ने याद दिलाया, शायद मैंने कलीसिया में बांटी हो या ना बांटी हो। So I would like to share how Lord Jesus has took away all my affliction and pain which I was going through for so many years. और मैं बताना चाहता हूँ गवाही कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारा दर्द और मेरी बीमारी ले ली, जो मैं कई साल तक उससे पीड़ित था। I was suffering from piles problem. मुझे पाइल्स से मैं संघर्ष कर रहा था, पाइल्स हुआ था मुझे, And I was suffering for almost 13 years. और मैं करीबन 13 वर्ष उससे मैं संघर्ष कर रहा था। When it was diagnosed, I was a teenager. जब मुझे पता चला कि मुझे पाइल्स है, तब मैं मेरी उम्र करीबन, मैं कम उम्र का था, Maybe 16, 17, yeah. मैं शायद 16-17 वर्ष का था तब। I did all my ways to overcome that suffering. और मैंने सब कुछ किया कि मैं उस बीमारी से बाहर निकल सकूं। When I shared with my friends, they और- told me that basically this illness will remain forever. और जब मैंने मेरे दोस्तों से उसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो पीड़ा है, ये बीमारी है, ये तो हमेशा के लिए रहेगी। And literally I was crying every day. और सच में मैं हर दिन रो रहा था। I consulted doctors and understood that I have to undergo a surgery. और मैंने डॉक्टरों से बात की और मुझे समझ आया कि मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। So finally I took a step of a surgery. तो अंत में मैंने ये कदम उठाया, मैंने सर्जरी करवाई। For a few months it was really good. तो कुछ महीनों के लिए
सब कुछ ठीक था I felt very normal. और मुझे बहुत ठीक महसूस हुआ। But after a few months, once again, it has reoccurred in my life. लेकिन कुछ महीनों के बाद वो फिर से मुझे हो गया। So once again, I decided to go for a surgery. तो मैंने फिर एक बार निर्णय लिया कि मैं दोबारा सर्जरी करूंगा। So I did eventually. तो मैंने वो किया आखिरकार। But once again, the few months, it was really good. तो वैसे ही हुआ कि कुछ महीनों के लिए सब कुछ अच्छा था, And later on, it got very worse than my first one. लेकिन आगे चलकर वो इतना बुरा हो गया, पहले से भी बदतर हो गया। In fact, my life was completely shattered at that moment. और मेरा जीवन जो था बिल्कुल हिल गया था उस क्षण में। My friends used to make a fun of me. और मेरे जो दोस्त थे मेरा मजाक उड़ाते थे। And so I was feeling so low in my life. तो मैं बहुत नीचा महसूस करता था मेरे जीवन में। There was no confidence left in my life. मेरे जीवन में आत्मविश्वास बिल्कुल मैं खो चुका था। Like how other people's live in their life. जैसे दूसरे जीते हैं वैसे मैं नहीं था। For a few years, I suffered like that. और कुछ सालों के लिए मैंने पीड़ा सहता रहा। But after a few years, I came to know there is a Ayurvedic treatment which gives you 100% relief. और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक होती है ट्रीटमेंट और उससे 100% हमें आराम मिलता है। I have undergone that treatment, और वो भी मैंने किया, but it was so painful that I thought to die on the same day. लेकिन वो इतना दर्दनीय था कि मैं सोच रहा था कि मैं उसी दिन मर जाऊं। But somehow I managed to take that pain. लेकिन किसी तरह से मैंने वो दर्द सह लिया। And my condition remained for almost 13 years. और मेरी जो दिशा थी वैसे ही रही करीबन 14 वर्षों के लिए। And finally, I accepted the words which were spoken by my friends or someone that I will be suffering this illness for the whole lifetime. और आखिरकार मैंने जो शब्द मुझ पर कहे गए थे मेरे दोस्तों के द्वारा, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे इस दिशा में जीवन भर रहना पड़ेगा। So, dear brothers and sisters, we may all have come across the situations. और भाई और बहनों, ऐसी स्थिति से हम सभी गुजरे होंगे। People say something, you accept it, and that you carry along with you. लोग कुछ कहते हैं, आप उसे स्वीकारते हैं और फिर उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। And that becomes a part of your life. और वो आपके जीवन का भाग बन जाता है। Whether you want to be a normal or abnormal, but you have to accept it. चाहे आपको सही रहना है या नहीं, लेकिन आपको उसे स्वीकारना पड़ता है। Since I came from the Hindu background, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आया, I started thinking what sin I am going through in my life. तो मैं सोचने लगा कि कौन सा पाप है जो मेरे जीवन में मैंने किया कि ऐसे मुझे गुजरना पड़ रहा है, That I have to suffer for so long. कि मुझे इतने समय के लिए पीड़ा सहनी पड़ रही है। So I did all types of puja and I've been to all astrologers to understand where am I going wrong. तो मैंने हर प्रकार की पूजा की और मैं ज्योतिषों के पास गया समझने के लिए कि मुझसे क्या गलती हुई है। To understand why am I in such a big problem like a health issues and the financial problem which I was going through. और ये समझने के लिए कि मैं क्यों इन मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर और आर्थिक मुश्किलों से। So finally I gave up my life in suffering. तो मैंने मेरा जीवन इस पीड़ा को दे दिया था। Later I heard about Jesus, बाद में मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना, who is a living God. जो जीवित परमेश्वर है। He's a Messiah who heals, delivers, and listens to our prayers. और वो एक मसीहा है जो चंगाई देता है, छुटकारा देता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। So I got a hope and started seeking him. तो मुझ में आशा आ गई और मैं यीशु की खोज करने लगा। I started reading Bible and understood about my sins. और मैं बाइबल पढ़ने लगा और मेरे पाप के बारे में समझने लगा। And I started repenting daily on that. और मैं प्रतिदिन उस पर पश्चाताप करने लगा। I trusted Lord Jesus that he can heal me.
मैं प्रभु यीशु पर भरोसा करने लगा कि वह मुझे चंगाई दे सकता है He can deliver me from all my sufferings and pains. और मेरी सारी पीड़ा से, दर्द से वो मुझे छुड़ा सकता है। And one day I got a promise from Bible, और एक दिन मुझे बाइबल से एक वादा मिला which I claimed in my prayers. जो मैंने मेरे प्रार्थनाओं पर उस पे मैंने घोषणा करना शुरू कर Which दिया, is from Isaiah 53:5 says, और वो है यशाह 53वें अध्याय से वचन 5। But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. परंतु Yeah. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। Amen. So this word I used to claim every day in my prayers. और इन वचनों को मैं प्रतिदिन मेरी प्रार्थना में उनकी घोषणा करता था। And somebody told me that if you keep meditating on these promises, one day you will find victory on your sufferings. और किसी ने मुझसे कहा, यदि तुम इन वादों पे प्रतिदिन इसकी घोषणा करोगे, मनन करोगे, तो एक दिन तुम्हारी संकट से तुम बाहर निकल जाओगे। So I was just normally I was speaking to the Lord, as your word says, by your wounds I am healed. और मैं बस परमेश्वर से मैं बातचीत करता था, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे जख्मों के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। So I just started meditating normally. I mean, I was just praying normally. बस मैं मनन करता था प्रतिदिन और प्रार्थना करता था सहज रूप से, साधारण रूप से। But nothing was happening to me. लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। So one day, one more verse which I came across from Matthew 6:6. और फिर मत्ती की किताब से 6 अध्याय से 6 वचन मैंने कहीं यह वचन को पढ़ा। But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So that moment I took a courage of faith. और तब मैंने विश्वास का साहस लिया। I shouted aloud in the room and shouted to Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. और मैं मेरे कमरे में था और मैंने यीशु की ओर पुकारा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Because Jesus was not present at that point. क्योंकि यीशु उस समय में वहां पर उपस्थित नहीं था। Because Jesus has crucified, died, and he is in heaven, but his presence was there among us. क्योंकि यीशु मारा गया और क्रूस पर लटकाया गया, गाड़ा गया, जीवित हो चुका है और अब वह स्वर्ग में है। So his presence is with us now. तो अब उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। Amen. Amen. So I did it for very few days by closing the doors, prayed loudly to Jesus, and after few days it was surprise to me that I got healed. और मैंने ये कई दिन तक किया, मेरे दरवाजे को बंद करके कमरे में मैं प्रार्थना करता रहा और मैंने चंगाई को पाया। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। And the joy which I felt in my life, it was unmeasurable joy. और जो आनंद मैंने मेरे जीवन में महसूस किया, उसको मैं उसकी आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा आनंद है वो। It not only just get rid out of my suffering, but it has opened my spiritual eyes. ऐसा नहीं कि मैं मेरी पीड़ा से बाहर आ गया, लेकिन मेरी आत्मिक नजर भी खुल गई, दृष्टि भी खुल गई। And from that moment onwards, I started following Jesus as my savior. और उसी क्षण से मैं यीशु मसीह को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसके पीछे मैं चलने लगा।
I gave my life to him completely, और मेरा जीवन मैंने पूरी तरह से उसे सौंप दिया, and I never turned back with my religious faith. और मेरा जो धार्मिक विश्वास था उसकी और मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। And now today it is more than 7 years. I am completely healed. अभी करीबन 7 वर्ष हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से मैंने चंगाई पाई है। Amen. So all glory to Lord Jesus. तो पूरी महिमा यीशु मसीह को मिले। So I cancelled and nullified the words which were been spoken by my friends. और मैंने उसे नकारा और स्वीकृत किया जो शब्द मेरे दोस्तों के द्वारा मुझ पर कहे गए थे, Which normally every person does it once they accept that they are suffering from such situation, they may not be healed. और ज्यादातर साधारण रूप में लोग ये स्वीकार करते हैं जब वह किसी पीड़ा से गुजरते हैं, कई समय तक सोचते हैं कि हम इससे कभी चंगाई नहीं पाएंगे। So brothers and sisters, there is a hope from Jesus. तो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा एक आशा है। He is the one who is Alpha and Omega. और वह एक है जो अल्फा है और ओमेगा है। He is the living God. और वह जीवित परमेश्वर है। So dear brothers and sisters, I would like to share that 5 things which we learn from this story of Bartimaeus. और भाइयों और बहनों, 5 चीजें जो इस बर्तिमाई की कहानी से हम सीखते हैं वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। First thing what we learn is asking with desperation. और पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि हम बेताब होकर पूछे। So if I would like to take a reference from John chapter 16 verse 24. तो मैं यूहन्ना 16वें अध्याय वचन 24 से बांटना चाहता हूँ। Until now you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be made full. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So in this story we have learned that Bartimaeus cried out to Lord. और इस कहानी में हम देखते हैं कि बर्तिमाई परमेश्वर की ओर पुकारता है। He called to Jesus, have mercy on him. और वो यीशु की ओर पुकारता है कि यीशु मुझ पर दया कर, so that he can see and live in his only livelihood. ताकि वह खुद कमा सके, खुद पर निर्भर हो सके। Yes. Because the situation with Bartimaeus was very bad. क्योंकि And बर्तिमाई की जो स्थिति थी वो बहुत ही कठिन थी, मुश्किल थी। nobody was there to help him. कोई नहीं था उसकी मदद के लिए। And some or the other times, even in our lives also, we feel helpless. और कभी-कभी हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही मदद महसूस करते हैं कि हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। We are here today that we know Jesus. हम आज यहाँ है कि हम यीशु को जानते हैं। And we can ask in desperation whatever we require. और हम बेताब होकर पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं यीशु से वो चीजें जिसकी हमें जरूरत है। Who is the trustee of mercy and grace? क्योंकि वही है दया का और अनुग्रह का ट्रस्टी, मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। So here we learn that asking in desperation is so important in our life. और इसलिए बेताब होकर पूछना या मांगना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। So second thing what I learned from this is courage of faith. और दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है विश्वास का साहस। In James chapter 5 verse 17 to 18 says that Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that he would not rain. It would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. और याकूब का 5वां अध्याय वचन 17 और 18। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। So Bartimaeus was rejected by the crowd.
तो बर्तिमाई का को तिरस्कार किया गया था भीड़ के द्वारा, In fact, he was rejected by the disciples of Jesus. और इतना ही नहीं, यीशु के चेलों के द्वारा भी उसे तिरस्कार किया गया था। So the moment when he thought that people are trying to put him down, तो वह क्षण जब उसने ये सोचा कि लोग उसे नीचा दिखाना चाहते हैं या नीचा करना चाहते he हैं, took a courage of a faith उसने विश्वास का साहस उठाया and he shouted a louder, और वह जोरों से पुकारने लगा, Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। At that moment, Jesus has healed him. और उसी क्षण यीशु ने उसे चंगाई दी, Jesus honored his faith. और यीशु ने उसके विश्वास का आदर किया। Similarly, by doing so, does not makes us weak and does not makes us seem selfish. और उसी तरह से अगर हम करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम कमजोर या स्वार्थी है। It allows us to open our faith and believe in Jesus. लेकिन वो हमें अनुमति देता है कि हम हमारे विश्वास को खुला करें और यीशु में विश्वास करें। Right. Third things what we can see over here is a responding to Jesus' call. और तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो यीशु के आमंत्रण की ओर प्रतिक्रिया देना। Christ encouraged him to hope that he should find mercy, for he stood still. और यीशु ने उसे प्रोत्साहन दिया, उसके आशा को प्रोत्साहन दिया कि उसे दया को ढूंढना है, और वह स्थिर खड़ा रहा। And commanded him to be called. और उसे आज्ञा दी और बुलाया। So gracious invitation Christ gives us to come to him. और एक अनुग्रही आमंत्रण यीशु मसीह हमें देता है कि हम उसके पास जाए। At that moment, when Bartimaeus was called, और उस क्षण में जब बर्तिमाई को बुलाया गया, he made the best of his way to Christ. तो उसने अपना उत्तम दिया कि वो यीशु के पास पहुंच जाए। He cast away his loose upper garment. और उसका जो ऊपरी ढीला वस्त्र था उसे उसने छोड़ दिया And came to Jesus. और वो यीशु के पास गया। He cast away everything that may put him danger. और उसने वो सब कुछ छोड़ दिया जो उसे रोक सकता था, that it may throw him down, या उसे नीचा कर सकता था, or might be any way which hinders him to coming to the Christ. या ऐसा कोई भी बात जो यीशु के पास जाने के लिए रुकावट बन जाती। So brothers and sisters, तो भाई और बहनों, those who come to Jesus जो यीशु के पास आते हैं must cast away the garment of their sufficiency. उन्हें अपने पर्याप्तता का जो वस्त्र है उसे छोड़ देना चाहिए। Must free themselves from every weight and sin that they like a long garment which actually a hindrance. और सारा जो बोझ है या पाप है उस लंबे वस्त्र की तरह जो रुकावट बन सकता है उसे छोड़ देना चाहिए। So when we come, it is very important when we come to Lord Jesus, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं we should give away all our burdens and receive his healing. तो हमें हमारे सारे बोझ जो है उसे छोड़ देना चाहिए और चंगाई को स्वीकारना चाहिए। Fourth thing is following Jesus. और चौथी बात है यीशु के पीछे हो लेना। The favor he received, और जो कृपा उसने पाई, his eyes were opened, उसकी नजर खुल गई, उसने दृष्टि पा ली। and how he made it a double favor on himself. और कैसे उसने दुगनी कृपा उसे बना लिया। When he had received his sight, जब उसने दृष्टि पाई he followed Jesus by the way. तो पूरे रास्ते में वो यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। By this he made it appear that he was thoroughly cured. और यह करके उसने यह दिखाया कि वह पूरी तरह से चंगा हो गया है। That he no more needed anyone to lead him. ताकि उसे अब किसी की भी जरूरत नहीं है उसकी अगुवाई करने के लिए। But could go himself by
this he evidenced the grateful sense he had of Christ. और वो अपने आप से जा सकता है और यह बताया उसने कि उसे एहसास है कि यीशु मसीह ने उसके लिए इतना बड़ा कार्य किया है. Amen. It is not enough to come to Christ for spiritual healing, और वो काफी नहीं है कि हम यीशु मसीह के पास आत्मिक चंगाई के लिए आए, but when we are healed, लेकिन जब हम चंगाई पाते हैं we must continue to follow him. जरूरी है कि हमें उसके पीछे लगातार होना चाहिए, that we may do honor to him ताकि हम उसे आदर ला सके and receive instruction from him. और हम उससे सीखे. Those that have spiritual eyesight और वे जिनके पास आत्मिक दृष्टि है see that the beauty in Christ that will draw them to run after him. और यीशु की जो खूबसूरती है उसके वजह से वो उसके करीब आ जाएंगे, उसके पीछे चलेंगे. Amen. Jesus asked James and John to follow him. यीशु ने याकूब और यूहन्ना से कहा कि वह उसके पीछे चले. They left their fishing nets and they followed him. तो उन्होंने अपने मच्छी के जाल को छोड़ दिया और उसके पीछे चल दिए. So Bartimaeus not only got healed, तो बर्तिमाई को केवल चंगाई नहीं मिली, but he followed Jesus and received salvation. लेकिन उसने वह यीशु के पीछे हो लिया और उसने उद्धार भी पाया. Fifth thing is that we learn from this passage is healing glorifies to God. और पांचवी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि चंगाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है. As he went along, he saw a man blind from birth. और जैसे वह आगे जा रहा था साथ, तब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो जन्म से ही अंधा है. His disciples asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? उसके शिष्य ने उससे पूछा कि रब्बी, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, कि यह जन्म से ही अंधा है. So Jesus replied that neither this man nor his parents sinned. तब यीशु ने उत्तर दिया, ना कि इस व्यक्ति ने ना इसके माता पिता ने पाप किया है, But this happened so that the works of God might be displayed in him. लेकिन ये इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर के कार्य इसमें दिखाई दे. This passage is from the reference John 9 from verse 1 to 3. और यह वचन है यूहन्ना के 9वें अध्याय वचन 1 से 3. God wants to heal so that man will give glory to him. परमेश्वर चंगाई देना चाहता है ताकि मनुष्य परमेश्वर को महिमा दे. So Bartimaeus' healing was also glorified to God. तो बर्तिमाई की चंगाई के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिली. Amen. So brothers and sisters, the story leaves us with certain challenges as a few questions to us. तो भाई और बहनों, यह कहानी जो है वो हमें एक चुनौती देती है और कुछ प्रश्न है हमारे लिए. The first question arises over here. Do we ask Jesus with desperation of your need? तो पहला प्रश्न ये है कि क्या हम यीशु से बेताब होकर मांगते हैं जो हमारी जरूरतें हैं? Do we have a courage of faith? क्या हमारे पास विश्वास का साहस है? Are we leaving our burden aside and accepting the call of Jesus? क्या हम हमारे बोझ रख छोड़ते हैं और यीशु की बुलाहट के पीछे चलते हैं या उसके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं? Fourthly is that if we are healed out of the suffering, और चौथी बात ये है कि यदि हमें हमारी पीड़ा से चंगाई मिलती है, are we following Jesus like Bartimaeus, तो क्या हम बर्तिमाई की तरह यीशु के पीछे चल रहे हैं, who became disciple till the death of Jesus on the cross? जो यीशु का चेला बन गया जब तक कि यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर. Sorry, church. Do you believe that God wants to be glorified by healing? क्या आप विश्वास करते हैं कि चंगाई के द्वारा परमेश्वर महिमा पाना चाहते हैं? Amen. Thank you so much.